if you can possibly to do make sure that you open your camera. We have to start with section 10. Before starting section 10, what we have done, generally we have understand the concept of property, we have understand the concept of transfer, we have understand the concept of transfer of property, and in regard to TPA, transfer property. This is all what we have done basically, and what cannot be transferred, what can be transferred, who uh, are the person eligible for transfers, and thereafter doing all this manner of doing transfer, we have also done that. Also, we have come to the condition ki what are the conditions, or when can a transfer be done, or how the transfer is to be performed. And therefore section 10 is talk about a situation about transfer. So let us read first section 10 and find out what section 10 talk about. So basically, what transfer are valid and not, or what conditions on transfer are allowed. Now, this is a general we talk about section 5 से लेके 54 or section 10 से लेके 54 तक. This is all, and in this section 10 is the first section in this line, right? So let us go into section 10 and find out what section 10 of the Transfer Property Act says. So let us read it and find out the important ingredients जो हैं. एक बार उनको देखते हैं और फिर उसके आगे मूव करते हैं. Yes. Heading: Conditions restraining alienation. So this is talking about condition restraining alienation. What do you mean by alienation? Basically, we know what is the meaning of the term alienation means transfer. You know, the word alienation means transfer. So they are saying condition restraining. Restrain matlab to stop. Conditions, we know what is conditions. So conditions, those are stopping further transfer, future transfer. ठीक है, उसके लिए section 10 is talking about. So let us read what section 10 says. This is where a property is transferred subject to a condition. So basically under section 10 there is a conditional transfer. समझ के देखिएगा, मैं ये वर्ड इसलिए ग्रीन में लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं यही होगा, मैंने सिर्फ एक बेसिक लाइन रीड की है, उसकी वजह से मैं इसको कंडीशनल ट्रांसफर लिख रहा हूँ. दे आर सेइंग वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन. ठीक है, तो व्हेन आई से दैट इज मींस देयर इज अ ट्रांसफर, देयर इज अ, तो बेसिकली सेक्शन 10 इज टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसफर, talking about a transfer which is subject to condition or limitation, same thing. So there is a condition on a transfer, so there is a transfer which is condition, that is why I'm writing it conditional transfer. This is where the property is transferred subject to a condition or limitation, absolutely restraining the transfer. The nature of the condition, ये जो condition है, that is absolute restraint, absolute restraint the power of transferee, the power of transferee or any other person claiming under him from parting or with or dispose of his interest in the property. Restraining the power of transferee to dispose of the property. So basically what they are saying that the condition is that
that transferee is absolutely restrained from further transfer. So they are saying there is a conditional transfer, and conditional transfer is of such a nature where the condition is that the transferee cannot divide or cannot alienate the property further. Okay. Then the condition or the limitation is void. This is such condition is void. Such condition is void. हमारा फोकस अभी इस पे, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम हाफ पैराग्राफ को फोकस कर रहे हैं. तो what basically this paragraph is saying again, try to understand. There is a house, there is a, suppose this is a property, this is a property of A. So A have a property. What did A make a sale to B? A make a sale to B. A ने property को क्या किया? Sale out कर दिया B को. It has sold out to B. And what has happened? In this, he added a condition that you will not sell this property further to anyone. You cannot sell this property further anyone. तो इस सिचुएशन में देखो, he is a transferer, this is a transferee, and this is a condition. So basically section 10 talk about such situation कि where transferer transfers the property to a transferee and imposes a condition, and condition is of such a nature that it absolutely restrain the transferee to sell the property or to alienate the property or to dispose of the property in future further. ठीक है, हम उस सारी चीजों को समझेंगे. Then section 10 says, section 10 क्या बोलता है? Condition is void. Then the condition is a void condition. However, the transfer is valid. Transfer is valid. सेक्शन 10 को समझ में आना क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 10 बोलता है कि whenever, suppose, फिर एक एग्जांपल लेते हैं. Let us pick an example. A make a gift to B of his property P. ठीक है, A ने B को गिफ्ट किया, B accepts the gift. ठीक है, with the condition that he cannot dispose of property further in any manner. Right? Cannot dispose of the property further in any manner. What is this? बताइए. Gift valid or not? First question. Gift यानी कि transfer. Gift is a transfer. Tell me, transfer is valid or not? This transfer is valid or not? Please tell me, valid or not? याद रखिएगा, ट्रांसफर जो है ना, ट्रांसफर वैलिड है. ट्रांसफर वैलिड. What about this condition? Is this valid or not? Is this condition valid or not? Condition valid or not?
This condition is void. This condition is not valid. फिर चाहे उसे बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया तभी भी इट्स अ void condition. Void under section 10. Basic. It's very basic. कितना को समझ में आया? मैं वापस रीड करूंगा फर्स्ट पैराग्राफ. बेसिक समझ में आया? तो बेसिकली लिख लो इसको, लिख लो, डोंट वरी. बेसिकली सेक्शन 10 हमको जो बात बोलने की कोशिश कर रहा है वो बोलते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल किसी और इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो उसको एब्सोल्यूट restraint to further dispose of the property. Further dispose of the property is not allowed. ये basic है. General understanding. How many people understand this basic general understanding? How many people are clear with this concept? एक बार और फिर रीड करते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं. जितना मैंने पैराग्राफ समझाया इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लीज. This much of paragraph which I have told you, is it clear or not? Please, clear or not? Clear है? Clear है काजल बेटा? ज्योति क्लियर है बेटा? ज्योति क्लियर है? यस. चलिए, वेरी गुड. वैधि क्लियर है बेटा? अब वापस एक बार सेक्शंस को रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं. रवि सर एक पेज छोड़ दीजिएगा प्लीज. एटलीस्ट 1.5 पेज तो छोड़िएगा. देखिए अब समझते हैं. व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, when a property is transferred, they are saying property is transferred. What do you mean by property is transferred? What do you mean by property is transferred? Basically, they are talking about absolute transfer of property. No, रवि सर अभी ज्वाइनिंग बाय ऐप नहीं है. ऐप से जब ज्वाइन होगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. ऐप से ज्वाइन नहीं करना है अभी, ठीक है? ऐप से वी विल स्टार्ट आफ्टर 2 वीक एटलीस्ट. अभी तो जूम पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? कोई नहीं. प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. What do you mean by the concept property is transferred? समझ लेना. They are not writing interest is transferred. They are not writing interest is transferred. They are writing property is transferred. Obviously, when they say property is transferred, the word property include both physical and non-physical. I will say tangible and non-tangible. Am I right or not? This is property is transferred. यानी कि property as a whole is transferred. So basically, section they are talking about absolute transfer. Absolute transfer. तो सेक्शन 10 एप्लीकेशन के लिए द नेचर ऑफ द ट्रांसफर मस्ट बी एन एब्सोल्यूट नेचर. द नेचर ऑफ द transfer is absolute. That is basically, when I say absolute, that is when I'm talking about vested interest. Basically, they are talking about a vested interest. अभी हम इस पर वापस आएंगे, so don't worry about it. तो पहली सिचुएशन सेक्शन 10 को कंप्लीट करने के लिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10, that the transfer must be an absolute transfer, that is an interest must be created on a vested interest. कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा. ट्रांसफर कंडीशनल हो सकता है, बट कंडीशनल ट्रांसफर एब्सोल्यूट ट्रांसफर भी हो सकते हैं. वो कैसे होते हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है? They are talking about vested. This says where the property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining. Second suggestion is condition is an absolute interest.
an absolute restraint. मुझे 1-2 दिन और चाहिए. I will be taking classes from my center only, है ना. यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है मेरी प्लेस पे. People are mad about here, है ना. ठेला सारा इसी समय आता है शाम को, है ना. सब्जी इस समय बेचते हैं यहाँ पे. हाँ, ठीक है. आलू, टमाटर, सब छोले और द लाइक गोलगप्पे, गाड़ियाँ सारी यहाँ पे. एक्चुअली आई लिव एट अ फर्स्ट फ्लोर ना, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो चलिए, तो 1-2 दिन बाद आज मैं वहीं से लेने के मूड में था, बट इट वाज रेनिंग, तो मैंने कहा नहीं यहीं से लेते हैं. कंडीशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्ट. तो कंडीशन और ऑन ऑन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्ट, ये जो कंडीशन है ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्ट नेचर की. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्ट? जो कंडीशन होगी ना, दैट शुड बी एन एब्सोल्यूट. समझिएगा, कंडीशन मस्ट बी absolute in nature. When I say absolute in nature, मतलब totally bars the further disposal. That is, section 10 does not apply upon. Section 10 does not apply upon partial restraint. It does not apply upon partial restraint. ये partial restraint पे नहीं लगता. कितनों को समझ में आया? अगर सिचुएशन ऐसी है, ये दोनों बातें, दैट इज अगर ये दो चीजें एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएटेड प्लस देयर इज अ कंडीशन इम्पोज्ड और दिस इज ऑफ एब्सोल्यूट नेचर. तब क्या होगा? तब कंडीशन void, transfer valid. This transfer is valid. Basic. Abhi, is it clear for this perspective? अब एक सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं. लिख लीजिए. राइट डाउन. चलिए, कंडीशन समझते देखते हैं कि क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. बिफोर गेटिंग इनटू दिस, ये बोल रहे हैं, एक बार और रीड करना चाहता हूं. वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन. Basically, they are talking about conditional transfer. है ना, ये कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली समझना पड़ेगा हम चीज को, ये क्या कहने वाले. मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और फिर मैं बोल रहा हूँ कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. देखिए, कंडीशनल ट्रांसफर्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके से होते हैं. कंडीशनल ट्रांसफर होते हैं बेसिकली वो दो तरीके से हो सकते हैं. एक होते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, एक हो सकते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट. तो जो कंडीशनल ट्रांसफर है वो दो तरीके के, टू नेचर के होते हैं. वन इज नोन एज कंडीशन प्रेसिडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन प्रेसिडेंट? Condition precedent, try to understand. This is first fulfill the condition, then transfer. For example, if you marry X, I will give you my house. ठीक है, या फिर my house, I will को छोड़ा, my house, you have my house.
ठीक है, if you marry X, you have my house. That means what? For the purpose of house, I have to marry. This is the condition precedent. This is a condition precedent. And conditional precedent create contingent interest. ये contingent interest create करती है, यानी कि जब तक you will not fulfill the interest, you will not fulfill the condition, you will not have the property, you will not have any interest in the property. Your interest in the property is contingent upon happening or non-happening of a certain event. ठीक है. What do you mean by subsequent condition? That is transfer first plus transfer is coupled with some condition. ठीक है. For example, have my house. You have my house, but get married within 2 years. तो घर आज दे दिया, बट शादी करने की कंडीशन कितने दिन में? दिस इज अ कंडीशन सब्सिक्वेंट. शादी 2 साल के कंडीशन की, आप ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है, 2 साल बाद शादी कर लेना. समझ में आया? दिस इज नोन एज, ये जो होती है ना, ये जो करती है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करती है. दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट. These conditional transfers जो होते हैं, ये आपके अंदर vested interest create करते हैं. Section 10 is talking about this situation. Section 10 is not talking about this situation. तो बेसिकली सेक्शन 10 जिन सिचुएशंस की बात कर रहा है, जिन कंडीशनल ट्रांसफर्स की बात कर रहा है, वो सब्सिक्वेंट कंडीशंस है. वो उन ट्रांसफर्स की बात कर रहा है जो ऑलरेडी अ वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट अ कंडीशन हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन इट. और वहां वो बोलता है कि इफ कंडीशन इज ऑफ सच अ नेचर which is absolutely restraining the individual, then it will be known as, ठीक है, then it will be considered as condition void, transfer valid. चलिए समझ के देखिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज किसी को नहीं समझ में आता एक बार बोलिएगा प्लीज. रवि सर क्लियर है? रेशमा बेटा क्लियर है? श्रेया भटनागर क्लियर बेटा? चलिए, तो अब समझ के देखिएगा. तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि दे आर टॉकिंग अबाउट, तो एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है ना, एक एब्सोल्यूट. मैथ्यू बेटा क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्लीज? ठीक है, एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, और उस एब्सोल्यूट ट्रांसफर पे एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन लग रहा है ना, तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन वॉइड है एब्सोल्यूट ट्रांसफर पर. तो ये जो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन है, ये क्या है? दिस इज ऑफ अ सब्सिक्वेंट नेचर. ये सब्सिक्वेंट नेचर है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, वेस्टेड इंटरेस्ट बोला. अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन या एब्सोल्यूट लिमिटेशन, और व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल रेस्ट्रेन. So why I'm continuously using absolute restraint? What do you mean by term absolute restraint? और I can say partial restraint. इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बार बार partial restraint बार बार यूज कर रहा हूँ. Absolute restraint condition है section 10. Section 10 does not apply upon, ठीक है. Section 10 does not apply upon partial restraint. Basically what I mean to say, partial restraints are allowed.
partial restraint are valid and allowed. So let us understand what do you mean by partial restraint or non-partial. Let it be. सिचुएशन को समझाने की कोशिश करते हैं। ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, ए ने प्रॉपर्टी को सेल किया बी को। तो हम बी का एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन उसने एक पहला ट्रांजैक्शन समझते हैं, उसने लिखा सेल किया है बी को, मनी एंड एवरीथिंग। उसने कंडीशन इंपोज की है, कंडीशन इंपोज की है, यू कैन नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी इन फ्यूचर। यू कैन नॉट सेल वर्ड यूज करते, यू कैन नॉट ट्रांसफर, है ना, यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी इन फ्यूचर इन एनी मैनर। आप इस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में किसी भी प्रोस्पेक्टिव में ट्रांसफर नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? देखिएगा, जब ए ने अपनी ओनरशिप बी को दे दी तो क्या हो गया, ऑल राइट्स ऑफ ए हैज वेस्टेड इनटू बी और नॉट। नाउ ही इज द ओनर, और ओनर के पास क्या होता है, ही हैव ऑल राइट्स ऑफ द, ऑल राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। उसके पास अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स हैं, अंडरस्टैंड। और उसके अंदर राइट टू सेल भी एग्जिस्ट करता है, राइट टू सेल पर से एग्जिस्ट करता है। अगर उसके अंदर राइट टू सेल पर से एग्जिस्ट करता है तो कैन एनीवन रिस्ट्रिक्ट माय राइट टू सेल, माय राइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी? नो, because once they transfer, this condition is what? This is an absolute restraint. Absolute restraint, and hence void. This is an absolute restraint and void. Similarly, suppose second situation pick karte. Am I going fast? क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? बता दीजिएगा प्लीज। फास्ट है काजल? थोड़ा सा, ठीक है। श्रेया फास्ट है? ठीक है, चलिए 2 मिनट देते हैं, होल्ड लेते हैं, डोंट वरी, आराम से पढ़ाते हैं। फास्ट हो गए, ठीक है। आज ये जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है ना, मुझे लिस्ट तो इतने लोगों ने दी थी और सब गायब हो गए, है ना। देयर वर ओनली 4 to 5 पीपल। वैसे ऑफलाइन नहीं आना ना तुमने, अपनी होगी ना ऑफलाइन, तो यू विल नॉट बी ऑफलाइन, ठीक है। राघव काय के बाद ऑनर के बाद क्या लिखे? अच्छा, ऑल राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, राइट टू सेल, उसके पास राइट टू सेल भी है, ठीक है। तो ऑफलाइन वाला ऑप्शन अभी भी लेकिन हमने ओपन रखा है। वी हैव 5 स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले, 1-2 और पढ़ जाएंगे, 6-7 हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। बट टाइमिंग कितने बजे से? 1:30 से हो गई है ना, 1:30 to 3:30। तो जो ऑफलाइन की टाइमिंग है वो 1:30 to 3:30 कर दी है अभी के लिए टाइमिंग। कितना सक्सेसफुल होने वाला है ये मुझे अभी आइडिया नहीं है इसका। ये आज तो ये फेलियर हो गया, तो हमने मॉर्निंग में क्लास नहीं लिया ऑफलाइन, बिकॉज स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट थे, फिर 4 हो गए आते आते 11:30 बजे तक। चलिए, 3-4 बच्चों में तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता है ना। चलिए, अब देखिए सेकंड कंडीशन को समझते हैं। इसी ट्रांजैक्शन में सेकंड कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड कंडीशन लगाया गया है उसने, सपोज एक और कंडीशन, सेकंड एग्जांपल है, ए ने सेल किया प्रॉपर्टी को बी को, कंडीशन इंपोज किया है, यू विल if you will sell the property, if you will transfer property, first ask my LR। उसने कंडीशन बोला कि if you transfers the property in future, then first ask my LR, that you will be asking my legal representative whether they want to buy it or not। अगर उन्होंने नहीं किया तब बताइए, is this an absolute restraint? Is this an absolute restraint?
Is this an absolute restraint? Answer is no. This is partial restraint. Why partial restraint? Why partial restraint? वो नहीं रोक रहा है. He's not stopping. He's not saying कि you cannot sell it. कह रहा है you can sell it. But just for that sake, आप पहले मेरी फैमिली से पूछ लेना, अगर क्या पता उसी प्राइस में वो खरीदने को रेडी है तो आई वांट कि वो पहले खरीदे. This is not restraining. This is only giving directions. This is a partial restraint. This is allowed. This is valid. So basically, restraints, absolute restraints basically means कि जब completely the transferee lost his power, his right to dispose of the property, then such restraints are known as absolute restraint. Whereas the transferee is not losing his right to transfer, rather some process has to be followed, then it can be termed as a partial restraint. And section 10 does not apply upon partial restraint. तो अभी तक हमको चीज समझ में आया कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर में सब्सिक्वेंट कंडीशन हो सकती है, और ये सब्सिक्वेंट कंडीशंस किस नेचर की हो सकती है? इट कैन बी इन अ नेचर ऑफ रेस्ट्रेंट. ठीक है, रेस्ट्रेंट टू अलिनिएट. ये जो सब्सिक्वेंट कंडीशंस है ये रेस्ट्रेंट टू अलिनिएट के फॉर्म में हो सकती है. और रेस्ट्रेंट टू अलिनिएट किस तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है. एब्सोल्यूट नेचर का हो सकता है और पार्शियल नेचर का हो सकता है. अगर ये एब्सोल्यूट है तब सेक्शन 10 लगेगा और ये वॉइड हो जाएगा. क्या वॉइड हो जाएगा? रेस्ट्रेंट, नॉट ट्रांसफर. ट्रांसफर विल बी वैलिड. ट्रांसफर को कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, because law favors alienation. याद रखना, that is why this is the example. Law favors alienation, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. This is what law favors alienation is favoring. Whereas if restraint is partial, it is valid. That means what? Even the restraint is valid, even the transfer is valid. है ना? How many people understand this? कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज. डन है. वेरी गुड. प्रीति एंड उदिता बेटा आ रहा है समझ में. सार्थक बेटा क्लियर है? अगर आप accessible होता है and camera can be assessed by you, please try to open your cameras. है? मैं अपना कैमरा बंद भी कर दूं तभी भी आप अपना ऑन रखा करें, बिकॉज आप मुझे देख पाए नहीं देख पाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको देख पाऊँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना. चल ज्योति कॉपी तो दिखा दे कौन सी बनाई है इस पर. ठीक है ठीक है. चलिए अब ये नेचर ऑफ रेस्ट्रेंट मैंने बोला. नेचर ऑफ रेस्ट्रेंट हमने बात किया, ये जो नेचर होगा ये एब्सोल्यूट होगा. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है. ठीक है, टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट मतलब आई विल से कैटेगरीज ऑफ रेस्ट्रेंट. कैटेगरीज ऑफ रेस्ट्रेंट. रेस्ट्रेंट को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट हो या पार्शियल रेस्ट्रेंट हो, बट रेस्ट्रेंट कैन बी इन रिस्पेक्ट टू टाइम, in respect to time, in respect to person. So they can be respect to money, it can be respect to money, and it can even be respect to person we have done. In respect to enjoyment, respect to enjoyment. तो ये कैटेगरीज ना ये अलग अलग कैटेगरीज की हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड रेस्ट्रेंट इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम. इसको सबसे पहले एक एक करके पिक करते हैं. बस ये एग्जांपल्स हैं, आप मुझे बताते रहिएगा. मैंने इसे वैसे कैटेगराइज कर लिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग एग्जांपल मैंने कैटेगराइज कर लिया. रेस्ट्रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ
ठीक है, हाँ ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया। व्हेन आई से ट्रांसफर आई मीन एब्सोल्यूट ट्रांसफर, यानी कि इट इज अ केस ऑफ सेल और गिफ्ट, है ना, इट इज अ केस ऑफ सेल और गिफ्ट। ए ने बी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया और उस पर कंडीशन इंपोज किया। कंडीशन इंपोज किया क्या? You will not further transfer it for next 100 years। बताइए। 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 ट्रांसफर एंड कंडीशन। ट्रांसफर वैलिड। ट्रांसफर ट्रांसफर का क्या होगा नीचे बताइए। आप बताइए प्लीज, आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर वैलिड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट कंडीशन? वेरी गुड पूजा। एंड कंडीशन इज अवॉइड। वेरी गुड श्रेया, कंडीशन इज वाइड, वेरी गुड। तो कंडीशन वाइड है, कंडीशन वाइड। वाई कंडीशन वाइड? क्योंकि परफेक्ट 100 साल बहुत लंबा टाइम होता है। एक और कंडीशन इसी कंडीशन इंपोज की, ये फर्स्ट है। सेकंड सिचुएशन, यू विल नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी फर्दर फॉर 1 ईयर। बताइए कंडीशन। ट्रांसफर इज वैलिड, ये भी ट्रांसफर वैलिड है। कंडीशन बताइए। नाउ टेल मी द कंडीशन, बताओ। वेरी गुड, कंडीशन वैलिड, वेरी गुड, वेरी गुड। कंडीशन वैलिड, वेरी गुड। सारे लोग आंसर दीजिए। कंडीशन वैलिड, वैलिड, वेरी गुड, वेरी गुड। कैन बी वैलिड, वेरी गुड। बोथ वैलिड, वेरी गुड। Condition valid because it's a partial restraint, very good। भैया किसने बोला ये partial restraint है? Condition is wide, condition is wide। चाहे एक दिन के लिए उसको स्टॉप, कहीं पे लिखा है कि इतने टाइम के लिए, टाइम की कंडीशन चाहे एक दिन की क्यों ना हो, इट इज वॉइड। क्यों? क्योंकि इट इज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट की ड्यूरेशन कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्ट्रेंट एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है, कंडीशन इज वाइड, ट्रांसफर इज वैलिड। ठीक है, इसी में थर्ड एग्जांपल है। You cannot sell it for 1 year। नहीं नहीं, ये तो मैंने लिखा दिया ना। If you say within 1 year, I will have right to repurchase it। बताइए ये कंडीशन बताइए। दिस कंडीशन सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सार्थक बताओ बेटा। दिस कंडीशन वैलिड, यस, कंडीशन इज वैलिड। व्हाई वैलिड? याद रखिएगा, सिर्फ यही एक सिचुएशन है टाइम जोन में, अगर टाइम बाउंड है फॉर द बेनिफिट ऑफ, इन बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, इन बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरर, तो वो हो सकता है, और वो भी पार्शियल नेचर का हो, पार्शियल नेचर का।
तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज कोई भी टाइम बाउंड है ना, restriction related to time will always be void. ठीक है, चलिए एक और सेकंड, restrain in respect to money. ठीक है, restrain in respect to money. restrain respect of money को समझते हैं. ए ने बी को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी. ए ने बी को ट्रांसफर किया है और कंडीशन इंपोज किया. कंडीशन क्या इंपोज है? पहला, इफ यू सेल इट, यस, आयुषी वाइड होती कंडीशन, वो पढ़ेंगे अभी. रेस्ट्रिक्ट इन रिस्पेक्ट टू पर्सन में, if you sell it, then you can sell it only at market price. बताइए, बोलता अगर सेल करना है तो सिर्फ मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे. कंडीशन, कंडीशन बताइए. ट्रांसफर वैलिड है, याद रखिएगा. कंडीशन, condition is void. You cannot determine why valid हो नहीं सकती. It's a void. Why void? Because आप किसी को ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो अपनी प्रॉपर्टी कितने में बेचेगा. समझ रहे हो? You cannot determine the nature of money you want to use. तो आप उसको बोल रहे हो कि you cannot sell it beyond market price, और आप उसको बोल रहे हो you cannot sell it 10 times of market price, or you will sell it 10 times of market price. नहीं, कुछ भी आप कंडीशन लगाते हो, मनी कंडीशंस आर always void. Third, restriction in respect to person. ये कंडीशंस को बड़े अच्छे समझना है. रेस्ट्रिक्शन इन सर्सल टू पर्सन को समझना है. ए ने बी को ट्रांसफर किया और बोला, कंडीशन लगाया, इफ ट्रांसफर then transfer to Mr. X only. बताइए. अच्छा, लिखना रह गया लोग. चलिए मैं आराम से बैठ के आराम से करूँगा. लिख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं. चलिए बताइए. कंडीशन, condition is void, right? Just an absolute restrict. But suppose second condition है, you will not sell it, you will not further transfer out of my family
और माई कम्युनिटी और माई कास्ट, कुछ भी हो सकता है। बताइए कंडीशन, बताइए कंडीशन। कंडीशन, वेरी गुड, दिस इज वैलिड, यस सार्थक यू आर राइट, इट इज वैलिड, इट्स अ पार्शियल रेस्ट्रेंट, इट्स अ पार्शियल रेस्ट्रेंट। व्हाई पार्शियल रेस्ट्रेंट? देखिए कंडीशन टू ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर मैन, रिस्पेक्ट टू अ मैन ना, ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस पे। तो फैमिली मीन्स अ वेरी बिग, फैमिली का मतलब क्या होता है? नाना मामा चाचा ताऊ, है ना? It is a very big circle. Community is a very big circle. Caste is a very big circle. तो it's a partial restraint. Whereas जब वो स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा है तब उसका पार्शियल रेस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को नहीं भेज सकता, ये एब्सोल्यूट है। बट यहाँ पे क्या है, उसकी फैमिली में सपोज इतने लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसके पास राइट टू बार्गेन है इतने लोगों के बीच में, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है, उसके पास राइट टू बार्गेन एग्जिस्ट करता है, तो इट्स अ पार्शियल रेस्ट्रेंट, इट्स अ पार्शियल रेस्ट्रेंट। कितनों को नहीं समझा? ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं पिक करता हूँ। ए ने सेल किया पी को और कंडीशन इंपोज कर दिया that you will not use property for commercial purpose। बताइए, और कंडीशन इंपोज कर दिया that you will use property only for religious purpose। You will use community only for religious purpose। बताइए, both the situations are white। ये हम सेक्शन 11 में पढ़ेंगे, ये कंडीशन सेक्शन 11 में भी फॉलो करती है, मैनर ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, हम सेक्शन 11 में इसको अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो कितने लोगों को समझ में आया प्लीज? सेक्शन 10 कितनों को दिमाग में चला गया? हाउ मेनी पीपल्स मस्तिष्क इट हैज गॉन? किसी की बुद्धि के अंदर गया या नहीं गया? क्लियर है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज मिल गई है सबको? प्लीज भटनागर साहब, टेस्ट सीरीज मिल गई, अभी आप खुश हैं? पूजा जी आप खुश हैं? आपको टेस्ट सीरीज मिल गई है ना? और कुछ लोगों ने मेरे को ऑनलाइन भेज दिया है कि वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, कुछ लोगों ने भेज दिया वो ऑफलाइन एग्जाम देंगे, और कुछ लोग इतने माने उन्होंने मुझे कुछ नहीं भेजा है, ठीक है। जिन्होंने मुझे कुछ नहीं भेजा वो भूल जाए कि उनको मैं टेस्ट पेपर भी हाथ लगाने दूंगा, उनको मैं फोटोस्टेट भी नहीं कराने दूंगा, ठीक है। और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मतलब टेस्ट नहीं देने का सेंस ये है कि ना वो ऑफलाइन दे रहे हैं ना ऑनलाइन दे रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यू आर नॉट एक्टिव ऑन द ग्रुप, एटलीस्ट मेरे मैसेज पे भी आप एक्टिव नहीं है, तो इससे ज़्यादा बकवास इंडिविजुअल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ वेला पर्सन टू सेंडिंग मैसेजेस ऑन द ग्रुप, है ना। तो आई एम अ वेरी फिक्स्ड स्पेसिफिक टू व्हाट, तो और रादर मेरे जितने भी ग्रुप बनाए हुए उसमें सारे वो स्पेसिफिक है, नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा पूरे हमारे ग्रुप में जिया जुडिशियल्स के जितने भी ग्रुप है उसमें ये खासियत बात है कि वी डू नॉट क्रिएट फालतू का हैवॉक फॉर द पीपल, है ना, कि वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस जा रहे हैं, गुड इवनिंग मैसेज आ रहे हैं, दैट क्रिएट इरिटेटिंग एप्टीट्यूड, है ना। हमारे ग्रुप पे वो नहीं होता, इट्स लाइक इन्फॉर्मेटिव ओनली। तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखें तो मैंने कल तक का टाइम दिया था या आज तक का टाइम, टुडे वाज द लास्ट डे,
है कल तक का लास्ट डे है, तो कल तक का लास्ट डे आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। मैंने ग्रुप आपको वो ऐप इसलिए अपलोड करने के लिए बोला है कि जिनका ऑनलाइन टेस्ट होगा इट विल बी डन थ्रू एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। नहीं सारे सब्जेक्ट जिनके लिए कंप्लीट, आप ऐसा कुछ नहीं कि वो टेस्ट सीरीज उन्हीं लोगों के लिए जिनके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। यू एनीवन कैन अप्लाई फॉर दैट टेस्ट सीरीज, डू नॉट वरी अबाउट इट। सेल्फ स्टडी करके आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो उन सब के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए है, तो आपको टेस्ट देना। और जो लोग ऑनलाइन ऑफर प्रेफर कर रहे हैं तो उनके लिए वो टेस्ट मेरे एप्लीकेशन पे रहेगा, तो वो आप अपना एप्लीकेशन मोबाइल पे डाउनलोड करके रखिएगा। प्लस अगर आपके पास मोबाइल पे डाउनलोड नहीं भी है तो आप एक बार लॉग इन कर देंगे तो यू जस्ट गो ऑन classplus.com पे ना, webclassplus.com एंड यू विल हैव लॉगिन्स। तो आपके पास लॉगिन तो आएगा, ठीक है। आपने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा दिया होगा ऐप में, एक बार वहाँ से रजिस्टर्ड ऐप तो आप उसको वेबसाइट से भी चला सकते हैं, ठीक है। देन ओनली, तो मैं ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए, वो आपको इजी रहेगा। तो वो इट विल बी लाइक एमपी एग्जामिनेशन जैसे होते हैं ना, वहीं के वहीं रिजल्ट आएगा, वहीं पे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए। तो सेक्शन 10 में कुछ चीजें समझ में आ गई। हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफर? पहली बात तो ये ट्रांसफर किसको समझ में आया? हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफर? नहीं समझ में आया तो अभी समझेंगे, डोंट वरी, क्योंकि मैंने इस पर ज्यादा करा भी नहीं है अभी। हमने रेस्ट्रेन को समझ लिया। हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रेन? Restraints is a condition or limitation. और हमने इसको भी समझ लिया कि रेस्ट्रेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट और पार्शियल। और हमने देख लिया कि जो सेक्शन 10 है वो यहाँ ये कंडीशन है ना, टॉक अबाउट दिस इज नॉट सेक्शन 10, ठीक है, ये सेक्शन 10 नहीं है, राइट। फिर प्लीज इसमें से कुछ भी ऐसा है जो नहीं हुआ है, मुझे आपको समझ में नहीं आया, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप मुझे बोलो कि सर दिस क्वेश्चन इज नॉट बीन क्लियर टू मी, ताकि मैं उसे रिवाइज कर पाऊँ। और फिर हमने सब्सिक्वेंट और प्रेसिडेंट रेस्ट्रेन को पढ़ा है। यू हैव अंडरस्टैंड दिस। मोर ओवर हमने फिर इसके बाद मैनर ऑफ रेस्ट्रेन, मैनर ऑफ क्रिएटिंग रेस्ट्रेन। तो रेस्ट्रेन किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, इन रिलेशन टू मनी, इन रिलेशन टू टाइम, इन रिलेशन टू पर्सन, इन रिलेशन टू एंजॉयमेंट, है ना, वो समझे। और जब हमने एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन समझा तो हमने पार्शियल रेस्ट्रेन भी समझा। दिस इज द फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। Let us go into the second para of section 10. Second para, so there are an exception to this. Basically, we are going to be exceptions of section 10. तो there are exceptions of section 10. तो first exception हमने एक exceptions तो हमने कर ही लिया, that पहला exception हमने कर लिया, partial transfer पे नहीं लगता है ना, it is apply upon absolute transfer. Second, ये partial restraint पे नहीं करता है, ये दो example तो हमने कर ही लिए, right? पार्शियल ट्रांसफर्स पे नहीं रखता है, पार्शियल रेस्ट्रेंट पे। व्हेन आई से पार्शियल ट्रांसफर्स तो बेसिकली मींस जहाँ पे कुछ ट्रस्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। और जो हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे वो इसी नेचर के हैं, दे आर द नेचर ऑफ पार्शियल ट्रांसफर हम पढ़ते हैं, लाइक। तो लेट अस रीड, मेरा फिर से रीड कर रहा हूँ शुरू से, पहले जितना पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसको समझते हैं, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, प्रोवाइजो बात को पढ़ेंगे। Where property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or the limitation is void. Clear? Except यानी कि जहां पे allowed है, first they are saying except in case of lease
lease where the condition is for the benefit of lessor or those claiming under him, provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman, ठीक है, except is a transfer to a woman, transfer to woman, not being Hindu, Mohammedan or Buddhist, not being Hindu, Muslim or Buddhist, so that she will not have power during her marriage to transfer or charge or same or her beneficial interest. So basically, they are talking transfer to a woman of Jews, Christians, or Parsis. Except in the case of lease, ये बताने की जरूरत तो नहीं है. तो section 10 does not apply upon lease. Why not? Because it's a partial transfer. Lease is not an absolute transfer. Lease is a partial transfer, है ना? That's why. ये कंडीशन बताने की जरूरत है, प्लीज इसको समझाने की जरूरत है. पहली कंडीशन. वाई मैं लीज को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लीज तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, तो इस लीज पे नहीं लग सकता. वाई नहीं लग सकता? वाई? बिकॉज लीज इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर. इट इज अ लीज. व्हाट इज लीज? लीज इज अ ट्रांसफर फॉर पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट. उसमें तो हमेशा एलिनेट करने की पावर रोक लेते हैं लीज में. यू कैन नॉट सेल ना, है ना? तो लीज में यस यू कैन क्रिएट रेस्टोरेंट्स. तो एब्सोल्यूट रेस्टोरेंट्स आर एब्सोल्यूट रेस्टोरेंट अलाउड. तो ऑब्वियसली अगर वो अलाउड नहीं करेगा तो एलएससी, तो मैंने अपनी कोई चीज लीज पे दे दी और मैंने बोल दिया कि आप इसे सेल भी कर दो, तो वो लीज कब बचा? वो सेल हो गया. आई विल ऑलवेज स्टॉप कि यू कैन डू एनीथिंग, you can enjoy it, you can do it, but you cannot dispose it off. This is an absolute restraint. Similarly, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस, एक्चुअली ये भी पहले एग्जिस्ट करते थे, बट इन सबका नाम अब हटा दिया. पहले ये इनके ऊपर भी लगता था. बट ज्यूज, क्रिश्चियंस और पारसीज की जो वुमेन है, मैरिड वुमेन है ना, इनको इनके अंदर वुमेन ई स्टेट का कंसेप्ट होता है. वुमेन ई स्टेट ये हिंदूज में भी होता था पहले, अब नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन स्टेट? जिसको हम स्त्री धन बोलते हैं, ठीक है. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ वुमेन ई स्टेट. तो जो वुमेन ई स्टेट्स होती है उसमें क्या होता है, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे कभी. एक कंसेप्ट होता है कि प्रॉपर्टीज आर गिवन टू मैरिड वाइफ only till she is married. जब तक उसकी उससे शादी हो रखी है तब तक के लिए दे रखी होती है, ठीक है. तो उसके अगर उससे उसकी शादी नहीं हुई या तलाक हो गई या उसका हस्बैंड मर गया तो उससे वो वापस ले ली जाती है वो प्रॉपर्टीज. ज्यूज, पारसीज, क्रिश्चियंस में वो बोलते हैं अगर, तो दे आर सेइंग इफ ट्रांसफर इज ऑफ सच नेचर, इफ ट्रांसफर is of the said nature, then absolute restraint are allowed. अगर इस नेचर का है तो absolute restraint allowed. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? प्लीज यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? प्लीज प्लीज वो लोग हाथ उठाएं जिन लोगों को समझ नहीं है. ठीक है, सबको समझ में आता है, समझ में नहीं आता मुझे. मैं अच्छा टीचर हूँ या तुम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो? मैं अच्छा टीचर हूँ, फिर ठीक है. मैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, ठीक है. अब वैसे कोई मुझे, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं आप अच्छे टीचर, ठीक है. कुछ बोल रहे हैं कि हम अच्छे स्टूडेंट हैं.
लीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। लीज वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है बलजीत। लीज होता क्या है, लीज होता क्या है समझ के देखो ना। लीज वाला कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं है। लीज इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर और पार्शियल ट्रांसफर। इट्स अ पार्शियल ट्रांसफर, हाँ है ना। लीज एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, पार्शियल ट्रांसफर है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, पार्शियल ट्रांसफर है। तो पार्शियल ट्रांसफर है तो सेक्शन 10 नहीं लगेगा, और अगर सेक्शन 10 नहीं लगेगा तो पार्शियल ट्रांसफर पे एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लागू है ना। तो पार्शियल ट्रांसफर तो मैंने तुमको प्रॉपर्टी लीज दी, तो मैं तुम पे ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि भैया इस प्रॉपर्टी को तुम्हारे अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, पहली बात, और तुम इसको सेल नहीं कर सकते, अलाउड। ठीक है, ऐसे मैरिड वुमेन के कंसेप्ट में समझते हैं। ये जो मैरिड वुमेन है, इसमें ज्यूज में, पारसीज में और क्रिश्चियंस में वुमेन्स को ना मैरिड पे, वुमेन गॉट प्रॉपर्टी ऑन मैरिज। तो इनको हस्बैंड प्रॉपर्टी देता है मैरिज पे, किसी भी कॉन्सेप्ट में, एज अ गिफ्ट, एज अ कुछ भी मिल जाता है। ठीक है, बट ये जो प्रॉपर्टीज हस्बैंड के साइड से वाइफ को मिलती है ऑन मैरिज, शी कैन नॉट सेल इट, शी कैन नॉट सेल इट। ठीक है, शी कैन एंजॉय इट, शी कैन एंजॉय इट, ये लॉ है। ठीक है, सेक्शन 10 कहता है हम इसको टच नहीं कर रहे, वी आर नॉट अफेक्टिंग दिस लॉ, अफेक्टिंग दिस लॉ। दैट मीन्स सेक्शन 10 का इन वाले एक्ट्स पे आज भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये आज भी पर से एग्जिस्ट करते हैं। तो वो एक लॉ है, वो एग्जिस्ट करता है, उस एग्जिस्ट को उन्होंने कहा कि हम उसको इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो अगर इन रिलीजन के अंदर इस तरीके के ट्रांसफर्स होते हैं, हम उन ट्रांसफर्स को अभी भी अलाउ कर देंगे, दो दे आर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। देखो ना, ही कैन नॉट सेल, कह रहे हैं दो इट इज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है, फिर भी हम अलाउ कर देंगे। आयो समझ में, नहीं आयो? अरे भैया, ओला बोला टोला, ठीक है, बलफ का बोला, तो समझ में आया नहीं आया? आया, हाँ, ठीक है, चलो। चलिए, अब बताइएगा, जब इतना समझ गए हो तो बताइएगा। एक था संता, एक था बंता, ठीक है, और एक था उनका भाई। ठीक है, तीनों थे, दिस वाज जॉइंट हिंदू फैमिली। इनका हो गया बंटवारा, पार्टीशन, बिकॉज इन्होंने घर नहीं बनाया था अंबुजा सीमेंट से, तो दे गेट पार्टीशन, है ना। अंबुजा सीमेंट की दीवार टूटती नहीं है ना, इनकी नहीं थी, दे गेट पार्टीशन। इनका पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन में ए को मिला 1/3, बी को मिला 1/3, और सी को मिला, और कंडीशन इंपोज किया गया, ए कैन नॉट सेल हिज शेयर। ठीक है, कंडीशन इंपोज किया, ए कैन नॉट सेल हिज शेयर। ए ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट। ठीक है, टेल मी द नेचर ऑफ कंडीशन विद दैट नेचर ऑफ कंडीशन। टेल मी द नेचर ऑफ कंडीशन, और रीजन दे देना, रीजन, गिव मी द रीजन। चलिए बताइए। आप लोगों के घर पे बारिश हो रही, सिर्फ मेरे घर में बारिश हो रही? नेचर ऑफ द कंडीशन का मतलब आई एम आस्किंग वाइड और वैलिड। वैलिड, वेरी गुड। रीजन बताइएगा, रीजन, रीजन, विदाउट रीजन कोई नहीं बताएगा।
जल्दी जल्दी तुरंत की तुरंत लिखिए। अच्छा ठीक है, पार्शियल रेस्ट्रेंट इसलिए वैलिड। वेरी गुड। बाकी पूजा के अलावा कोई और है जवाब देने वाला? बलजीत नहीं है तेरा। वैलिड बिकॉज़ partitions are not the transfers। वेरी गुड। चलिए ठीक है राघव, और गुड, वेरी गुड। वाइड है, restriction has wide। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखिए बाकी लोग आंसर नहीं देंगे शायद, समझिएगा। पहली बात तो, पहला सवाल, विल सेक्शन 10 अप्लाई? पहले तो ये चेक करना है। आंसर इज नो, as partition is not governed by section 10, वो सॉरी टीपीए। तो पहली बात तो इट्स अ केस ऑफ अ पार्टीशन, तो सेक्शन 10 लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो नेचर ऑफ कंडीशन से सोचने से पहले हमको ये एक्सप्लेन करना है कि इन दिस सिचुएशन सेक्शन 10 विल नॉट अप्लाई। इट इज अ केस वेयर सेक्शन 10 विल नॉट अप्लाई। तब क्या लगेगा? दैट मींस इट्स बेस्ड अपॉन नेचुरल जस्टिस। नाउ हमें इसे डिसाइड करना होगा नेचुरल जस्टिस। तो इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे यस इट्स राइट इज अ ग्राउंड ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। तो ये है एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट और है भी वाइड, बट नॉट अंडर सेक्शन 10, rather on the basis of principal justice। why not under section 10? सेक्शन 10 में क्यों नहीं है? बिकॉज सेक्शन 10 के लिए पार्टीशन ट्रांसफर होना चाहिए, एंड पार्टीशन इज नॉट द ट्रांसफर। पार्टीशन ट्रांसफर थोड़ी था, ये तो मैंने बता दी बात। इस बात पे किसी को कोई भी गुरेज, शक कि पार्टीशन ट्रांसफर क्यों नहीं है? चलिए, दिस इज सेक्शन 10। चलिए सेक्शन 10 लिखते हैं।